Good morning, students. I, Jeevan Preeti Singh, Assistant Professor, Faculty of Pharmaceutical Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Today I will discuss about the topic Utilities and Maintenance of Sterile Area. यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस स्ट्राइल एरिया, ये टॉपिक भी हमारा अभी जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, प्रोमाइसेस डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट, उस प्लांट लेआउट का ही ये पार्ट है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी यूटिलिटीज़ होती हैं और जो स्टराइल एरिया में किसी भी प्रोडक्ट को स्टराइज करने के लिए जो मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और उनका कैसे फुलफिलमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज ये क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्म 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एरियाज़। यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एरियाज़ में हम देखते हैं कि देयर सेल द रिटन प्रोसीजर, ये एक रिटन प्रोसीजर होता है। रिटन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग की जो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं for the sanitation and utilities of the specific area and describing in sufficient detail clinical schedule, method, equipment and material to be used in cleaning the building and facilities. Written procedure should be designed and followed. Sanitation procedure shall be applied to works, working and premises. Maintenance, how to maintain the utilities criteria in pharmaceutical industry. Monitor cracks and holes in wall, floor and ceiling damage to insulation or pipes. Dust accumulation on light fitting etc. Building inspections and maintenance program should be defined in writing and record kept. Other essential servicing like spoilage of plaster, peeling of paint, leakage from ceiling, plumbing problem, loose or broken tiles, and improper electrical line, missing tube. Documents required: site plan, floor wise building plan showing the following details: general layout of the room, equipment plant layout and men movement layout. Areas statement in the following fashion: plot areas, floor wise and building up areas. Department wise areas, section, subsection, utilities, workshop and corridors, storage areas, change room and wash room, restroom. Plant capacity statement based on the one shift, 1 month, 1 year, utilities capacity planned, electric power, raw water, purified water and water for the injection, raw steam and pure steam, compressed air, total air conditioner. जो यूटिलिटीज़ होती हैं हमारी किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की, उनको हम कैसे मेंटेन करते हैं, हाउ टू मेंटेन द यूटिलिटीज़ कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रिक पावर है हमारी वो सफिशिएंट आ रही है या नहीं आ रही है, रॉ वाटर जो यूज़ हम कर रहे हैं, कुछ सिंपल टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो प्यूरिफाइड वाटर यूज़ कर रहे हैं, उनकी उसमें कोई केमिकल कंटामिनेशन तो नहीं है, वो बिल्कुल प्योर वाटर है या नहीं है। एंड जो प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करेंगे उसका प्रॉपर डिस्टिलेशन करके हम वो प्यूरिफाइड वाटर को यूज़ करते हैं। देन हम वाटर फॉर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं अगर हम कोई भी अगर हम लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हैं या फिर आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, ईयर ड्रॉप्स बना रहे हैं, तो उस केस में हम वाटर फॉर इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। रॉ स्टीम यूज़ करते हैं फॉर द फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन प्लेस एंड प्योर स्टीम का यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। ये सारी जो हमारी जो यूटिलिटीज़ होती हैं इनको हम ऐसे मेंटेन करके रखते हैं कि हमारा जो स्टेराइल एरिया है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, उसको हम अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। देन जो हमारा बिल्डिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें प्रोडक्शन ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी कैरीड आउट इन अ क्लीन एनवायरनमेंट with a limit for the environmental quality of microbial and dust particle contamination. This is limit for the contamination is necessary is reduce the product contamination. The production area is normally divided into the cleanup area and compounding area, the aseptic area and the quarantine area and the packaging area. Flow diagram of the aseptic area.
एसेप्टिक एरिया के फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि ऑफिशियल एयर लॉक होता है। एयर लॉक होता है एयर की बाहर का जो हमारा कंटामिनेशन है, बाहर की जो एयर है वो अंदर जो हम एसेप्टिक एरिया को इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर वो एंटर ना हो। अगर वो एंटर होगा तो अल्टीमेटली जो कंटामिनेशन है वो प्रोड्यूस होगा। देन एयर लॉक करेंगे, देन कंपाउंडिंग एरिया को इस्टेब्लिश करेंगे। कंपाउंडिंग एरिया के बाद एसेप्टिक फिलिंग एरिया, देन क्वारंटाइन एरिया, एंड देन लास्ट वन इज स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया। अभी हम बात करते हैं स्टॉक रूम की। स्टॉक रूम में क्लीनअप एरिया होता है, और क्लीनअप एरिया को कैसे हम हाउ टू स्टरलाइज करेंगे, हाउ टू स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड पैकेजिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, नाउ क्वालिटी कंट्रोल, then we come to the storage and shipping. So this is the flow diagram of the aseptic area. Now we come to the floor, walls and ceiling. Floors, walls and ceiling is also the very important part of the utilities of the maintenance, utilities and maintenance of the sterile area. Door, window and services, all pipes and gas cylinders and light sources, not essential switches such as room lighting switches and should be installed outside the clean area. पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। अगर यूटिलिटीज़ जो हमारी हैं उनको हमें मेंटेन करके रखना है, जो हमारे स्टराइल एरियाज़ हैं उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे जो पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स होते हैं उनका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। The main source of the contamination is clean areas arises from skin scales and which are released by the operators. Personnel selected to work on the preparation of the aseptic room and quarantine room and quality assurance unit and manufacturing unit for the parental products must be neat and reliable. They should be in good health and free from the डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। जिस टाइम पे हम अगर पेरेंटल प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें प्रॉपर एसेप्टिक एरिया का और माइक्रोबियल कंटामिनेशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और ऑल ओवर यूटिलिटीज़ और मेंटेनेंस रखना चाहिए, जिससे भी उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं। ऑल पर्सनल शुड बी ट्रेन्ड फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड एसेप्टिक टेक्निक। टाइम टू टाइम एसेप्टिक टेक्निक में जो हमारे ट्रेनीज़ होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, उसमें काम करने के लिए हम उनको अपॉइंट करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग एसेप्टिक एरिया। And now we come to the personal and protective clothing. The operator should be wear sterile, protective and clothing including head wear power-free rubber or plastic gloves, a non-fiber shedding face mask and footwears. All protective clothing must be sterilized by moist heat sterilization or ethylene oxide sterilization. Fresh sterile clothing should normally be provided each time the person enter the aseptic area. Cleaning and disinfection की अगर हम बात करें कि हाउ टू क्लीन एसेप्टिक एरिया एंड उसमें कैसे कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं हो, तो जो क्लीनिंग है और जो डिसइंफेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द माइक्रोबियल एंड particulate contamination. Cleaning agent are the alkaline, detergent, non-ionic and ionic surfactant. Different types of disinfectants should be employed in rotation and prevent the development of the resistant and strains of the microorganism. और एयर सप्लाई कैसे होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो हैपा फिल्टर्स होते हैं, जो हमारे हैपा फिल्टर्स होते हैं वो भी जो हमारे जो एसेप्टिक एरिया होता है, स्टराइल एरिया होता है, वहीं पे हमारे फॉर द फिल्ट्रेशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। हैपा फिल्टर्स मस्ट बी पोजिशन एट द इनलेट of the clean room at the pre-filter may be fitted upstream above the HEPA filters to prolong the life of the final filter. HEPA filters are used in the construction of
vertical and horizontal laminar airflow bench. The air filtered from the laminar airflow is claimed to 99.97% free from the microbial contamination. These filters are supported to provide class 100 air, and they should be certified every 6 to 12 months. Laminar flow equipment, vertical laminar airflow bench, horizontal laminar airflow bench, and vertical laminar airflow bench is used for the quality control unit. And airflow pattern is divided into three parts. First one is unidirectional airflow and non-directional and combined airflow. Now we come to the unidirectional flow. Unidirectional flow is very important for the flow of fluid and success of the contamination in aseptic area and method of prevention. किसका जो हमारा कंटामिनेशन होता है वो एसेप्टिक एरिया के टाइम पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो, किसके थ्रू होता है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, वाटर, रॉ मटेरियल, प्रोसेस ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, पैकेजिंग. क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम परमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एट रेस्ट टाइम पे. अगर हम देखते हैं इन ऑपरेशन टाइम पे देखते हैं तो जो ग्रेड होती है वो डिवाइडेड होती है हमारी ABCD. 0.5 माइक्रोमीटर में 3520 एट रेस्ट टाइम होता है. तो अभी हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्राइल एरिया. किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोमाइसिस की जो डिज़ाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है और जो प्लांट लेआउट है वो कैसा होना चाहिए, और जो उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो यूटिलिटीज़ एंड जो मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्राइल एरिया को मेंटेन करने के लिए जो भी क्राइटेरियाज हम फॉलो कर रहे हैं उन सब का हमने डिस्कशन किया. ठीक है. लास्ट टॉपिक में हमने कौन सा पढ़ा था कि प्रोमाइसिस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट. उसी में फर्दर डिवाइडेड पार्ट हमारा कौन सा था, यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्राइल एरियाज. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उस टाइम पे अगर किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन या सॉलिड में या सेमी सॉलिड में किसी ऐसे टाइप के डोजेस फॉर्म या प्रिपरेशंस में कोई कंटामिनेशन होता है तो उस कंटामिनेशन को उस बैच के लिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल द कंटामिनेशन इन द प्रोसेसिंग टाइम पे हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, कंट्रोल ऑफ द कंटामिनेशन. ठीक है. थैंक यू गाइस.